Okay, students. So, very welcome to all of you. Now we are going to move on to the next part of the topic, that is modulus and argument of a complex number. Last time हमने type 7 complete किया था. अभी type 8. Please write down this heading. तो सबसे पहले तो मैं आपको explain करूंगा कि modulus and argument of a complex number exactly होता क्या है. तो write down. If z is equal to x plus iota y is a complex number. हम z is equal to x plus iota y complex number लेंगे. टेक्स्ट बुक में he has taken z is equal to a plus iota b complex number लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट हमने देखा लास्ट प्रीवियस टाइप में पॉइंट p is always written as x comma y. इसीलिए हम instead of using a plus iota b we will be writing down complex number z as x plus iota y. So write down this first. तो अगर z is equal to x plus iota y कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, then we know that पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स. पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स x comma y होंगे. अभी हमने देखा कि जो पॉइंट P है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है. पॉइंट P कैन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट P कैन बी इन द सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. दैट विल डिपेंड ऑन क्या कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है. So now let us draw the Argand's diagram, you can say, for this. So draw the coordinate axis. This is our x axis, this is our y axis. ये हमारा origin है. This is x o x dash and this is y o y dash. A point p x comma y. तो यहाँ पे ले लेते हैं हम point p. तो ये हमारा point p है. p के coordinates है x comma y. Now what I'm going to do is I'm going to join these two points. over p को ज्वाइन कर दिया. Now I draw a perpendicular from point P which meets x axis at point M. And we already know students कि ये जो x axis है this is the real axis. ये real axis है and this y axis is the imaginary axis. अभी हमने previous type में इसको cover किया था. Now what happens is ये जो point P का distance from the origin है, the distance of the point P from the origin is nothing but our modulus. Let me explain in detail. Now ये point P है, so you observe students that this length OM is nothing but x, length PM is nothing but y. ये y length है, ये x length है. Now from this triangle we will apply Pythagoras theorem. तो जब हम Pythagoras theorem apply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x square plus y square is equal to OP square. Now let us take this distance OP as let us denoted by the notation r. r notation दे देते हैं हम इसको. तो from the above figure ऐसा लिखो आप. Write down. From the triangle, in fact you can write down from the triangle POM या OMP कैसे भी नाम दे दो. From the triangle POM we have, ठीक है, क्या मिलेगा? r square will be nothing but equal to x square plus y square by Pythagoras theorem. X square plus y square is nothing but equal to r square. So therefore from here students what will be r? So r will be nothing but equal to under root of x square plus y square होगा. So this distance r
पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज डिनोटेड बाय द नोटेशन R and it is also written as modulus of Z. तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, राइट डाउन। अभी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो ऐसा लिखो ऑन द नेक्स्ट लाइन, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय, ऐसा लिखो। तो इट इज एक्चुअली क्या है वो, इट इज लेंथ ओपी, लेंथ ओपी, or you can say distance of the point P from the origin is denoted by the notation R, sometimes also written as mod Z, Z का मॉड्यूलस है, and that is nothing but equal to under root of x square plus y square, और यही हमारा मॉड्यूलस फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो अगर आपको वो पूछेगा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड करने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज एक्स, एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप नोट डाउन कर लो, write down till here, then we'll move ahead. अब मॉड्यूलस तो हमने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, अभी हमें देखना है कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। So write down till here, then we'll move on to the argument of the complex number. I hope everyone you must have written. Now pay attention. Now argument of a complex number क्या होता है, ध्यान दीजिए। Now you observe this segment OP, ये जो segment OP है, this will make angle theta with positive direction of x axis, trigonometry में हमने किया हुआ है। This segment OP makes an angle theta with the positive direction of x axis. तो ये जो एंगल थीटा होता है ना, इस एंगल थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन फॉर योर रेफरेंस, ऐसा लिखो सेगमेंट ओपी, और सिंपली यू कैन राइट डाउन ओपी मेक्स एन एंगल थीटा with positive direction of x axis, measured in anti-clockwise डायरेक्शन। एंगल कैसे मेजर करेंगे स्टूडेंट, एंगल विल बी मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रिकलेक्ट वी हैव डन एंगल इन इट्स मेजरमेंट में द रोटेशन विल बी ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा घूमेगा एंगल, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ओपी मेक्स एन एंगल थीटा with the positive direction of x axis measured in anti-clockwise direction. तो ये जो थीटा होता है, that theta is called as argument. तो लिख लो थीटा is called as argument or एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं उसको हम, और एल्स वी कॉल इट एज एम्पलीट्यूड आल्सो। तो वो क्वेश्चंस पूछेंगे फाइंड द आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड। तो ये तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो मैंने आपको लिख के दिया, फाइंड कैसे करना है अभी वो मैं आपको बताने वाला हूं आगे। So let us see how we are going to find out this argument theta. Okay, so just let me bifurcate this. मैं डिवाइड कर देता हूँ दो हाफ में। Now see from the figure, ऐसा लिखो आप आपके रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स, राइट डाउन
from the figure, or you can say from the triangle. Now see over here, trigonometry हमने already किया हुआ है. So from the figure students, what is sin theta? So sin theta is opposite upon hypotenuse. Sin theta कैसे find करते हैं? Opposite side upon the hypotenuse. So which is the opposite side? So sin theta is y upon r, and cos theta is adjacent upon hypotenuse. तो ये हो जाएगा x upon r. तो sin theta and cos theta हमने इस ट्रायंगल से फॉर्म कर लिया या फाइंड कर लिया, ठीक है. और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है. दिस इज डन. तो प्लीज नोट डाउन दिस. तो देयरफॉर अभी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं. तो व्हेन विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो व्हाट इज y इक्वल टू? y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है. तो देयरफॉर tan थीटा कैसे मिलेगा? तो वी ऑल नो स्टूडेंट्स, tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है. tan इज sin अपॉन cos. या डायरेक्टली आप ट्रायंगल से भी देख सकते हो. tan थीटा इज हाउ मच? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो tan थीटा इज नथिंग बट y by x opposite side upon the adjacent side. So tan theta is y by x. So theta will be how much? So theta will be tan inverse of y by x. तो ये जो थीटा मिला ना, theta is equal to tan inverse of y by x. This is called as nothing but the argument. इसको हम बोलेंगे argument. Argument or also called as amplitude भी हम इसको बुलाते हैं, ठीक है. बट जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x नहीं यूज करेंगे, बिकॉज tan इनवर्स फंक्शन इज स्टिल टू बी डन. तो इनवर्स फंक्शन के बारे में मैं अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा. तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, वी विल यूज दिस फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा फाइंड करने के लिए. तो थीटा एक्चुअली ऐसा मिलता है, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है. राइट डाउन, देन विल मूव अहेड. So I hope everyone must have written this. अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंस इज वी हैव डन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हमने किया है. जैसे जैसे थीटा चेंज होता है, क्वाड्रेंट आल्सो चेंजेस, ठीक है. तो अगर क्वाड्रेंट चेंज होगा तो उसके हिसाब से थीटा भी चेंज हो जाएगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उसका जो साइन है, हाउ इट वर्क्स आउट, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ नाउ 4 डायग्राम्स, क्योंकि पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है. तो चलो ड्रॉ इट वन बाय वन. तो सबसे पहले आप छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. जस्ट ड्रॉ दिस. नाउ सपोज इफ द पॉइंट P, अगर पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो अगर पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा डायरेक्टली मिलेगा. ड्रॉ दिस डायग्राम. अच्छा, और एल्स लेट मी एक्सप्लेन, फिर आप बाद में ड्रॉ कर लेना. तो पॉइंट P अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा डायरेक्टली मिलेगा. अगर पॉइंट P सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जस्ट लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट. पॉइंट P सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल मुझे फाइंड करना है. दिस एंगल विल बी नथिंग बट थीटा मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब ये एंगल फाइंड करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा. ओके, वन सेकेंड. tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा. देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया. तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है. अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, प्लीज अंडरस्टैंड है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है.
So if the point P is in the third quadrant, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मेरा थीटा हो जाएगा, ठीक है। So in the third quadrant, so which formula will I use? Tan of phi plus theta इक्वल टू tan थीटा होता है। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और फाइनली अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है दिस इज पॉइंट P, और ये एंगल अगर मुझे फाइंड करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर ये थीटा फाइंड करना है, चलो थीटा चाहिए तो आपके रेफरेंस के लिए इधर लिख देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो विच फॉर्मूला विल आई यूज? तो वो लिख लीजिए आप, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। दिस फॉर्मूला आई विल बी यूजिंग। तो टोटल 4 फॉर्मूलेज हमें यूज करने हैं। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, कैसे? तो दैट वी विल डिस्कस इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आई विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली दीज आर कॉल्ड एज अलाइड एंगल फॉर्मूलेज, यू मस्ट हैव डन ट्रिग्नोमेट्री में, इफ नॉट डन तो आप सीखोगे। इसको हम बोलते हैं अलाइड एंगल फॉर्मूलेज। तो अलाइड एंगल फॉर्मूलेज यूज करके हमें ये थीटा फाइंड करना होता है, इसीलिए हम ये tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x वाला सिस्टम यूज करेंगे। तो वंस अगेन लेट अस रिकलेक्ट, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मुझे ये बोर्ड पे से रब करना पड़ेगा। मतलब चाहिए तो फॉर्मूलेज में इस सेक्शन में लिख दूंगा, बट आई कैन कीप डायग्राम्स ऑन द बोर्ड, अदरवाइज आई विल नॉट हैव स्पेस, ठीक है। तो इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो पॉइंट P किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। तो हाउ डू वी फाइंड आउट द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है? r which is equal to mod z which is given by under root of x square plus y square. And what is the argument of the complex number? The angle which is made by the segment OP with the positive direction of x axis, वो जो थीटा एंगल होता है उसको हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, ये फॉर्मूला है थीटा फाइंड करने के लिए। और ये क्वाड्रेंट सिस्टम के जो फॉर्मूलेज है वो हमें याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन नेक्स्ट टाइप ऑल्सो। हाँ, हमें अभी इसके बाद पोलर फॉर्म भी करना है, तो उसमें भी ये सारी चीजें हेल्प करेगी। तो फर्स्ट यू ड्रॉ दिस रिप्रेजेंटेशन, यहाँ तक तो आपने पहले लिख लिया था, ये ड्रॉ कर लीजिए और ये लिख लीजिए आपके रेफरेंस के लिए, देन विल मूव अहेड। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो थियरी पार्ट था वो मैंने कट शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। मॉडुलस फाइंड करने का फॉर्मूला, mod z is equal to r which is given by the formula under root of x square plus y square, and argument or amplitude theta is given by tan inverse of y by x। बट आपको पता है हम tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। पर ये रहने दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा डायरेक्टली मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रिस्पेक्टिवली ये फॉर्मूलेज यूज करना है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए आप। फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स है दे आर ऑल फॉर 2 मार्क्स, सारे प्रॉब्लम्स 2 मार्क वाले हैं। चलो, तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज द 8th वन। अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने नंबर लिखे हैं, बट रैंडमली आई हैव टेकन द नंबर्स, टेकन द एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला एग्जांपल विच इज द 8th वन। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी कंपेयर विथ x प्लस आयोटा y।
तो लिखिए सॉल्यूशन फॉर द 8th एग्जांपल, ऐसा लिखो आप, कंपेयरिंग x प्लस 1 प्लस आइटा और अयोटा विथ x प्लस अयोटा y, इससे हम कंपेयर करेंगे। सो हियर हमेशा सेम वे विल स्टार्ट। सो हियर x का वैल्यू इज 1 एंड y का वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो देयरफॉर पॉइंट P हम कैसे लिखते हैं? P we write it down it as x comma y which is nothing but equivalent to 1 comma 1। अब पॉइंट P जो है, अब देखो x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो पॉइंट P लाइज इन विच क्वाड्रेंट? तो पॉइंट P लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसा लिख लो आपके लिए, पॉइंट P लाइज इन so what I was saying is that point P lies in the first quadrant students। पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब जो एंगल है, जो थीटा है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इफ द पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो कैसे? तो सबसे पहले हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। वी वांट टू फाइंड आउट मॉडुलस एज वेल एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट ही होता है। तो चलो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट मॉडुलस। Now modulus is denoted by the notation mod z, which is given by the formula under root of x square plus y square. So that will be nothing but equal to root 2। x और y का वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो मॉडुलस कितना आ गया? रूट 2 आ गया। हो गया, दैट्स इट। मॉडुलस वाला पार्ट इज ओवर। अभी हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड और द आर्ग्यूमेंट। तो आप लिख लो एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, हाँ अभी जैसे मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे। व्हाट विल बी यूजिंग? सॉरी डाउन, tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू y by x। so therefore tan theta is equal to y divided by x, तो 1/1। ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कि 1/1 1 ही होता है, बट आपके रेफरेंस के लिए स्टेप वाइज जा रहा हूं मैं। therefore tan theta is equal to 1। now recollect we have done trigonometry, ठीक है। now if you have not done trigonometry, तो इतना तो trigonometry आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया है। now recollect the trigonometric table। tan फंक्शन कौन से एंगल पे 1 होता है? तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। recollect trigonometry, since tan 45 डिग्री का वैल्यू इज इक्वल टू 1, so this one will be replaced by tan 45। अच्छा, अभी ऐसा क्यों करना जरूरी है? बिकॉज वी हैव टू कंपेयर बोथ द साइड्स। दोनों साइड को कंपेयर करके हमें थीटा फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे भी tan फंक्शन है, तो राइट हैंड साइड में भी tan फंक्शन चाहिए। तो therefore students, how much is theta? So theta is nothing but equal to 45 डिग्री। प्रॉब्लम इज ओवर। देखो ना क्या फाइंड करना था? मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलस हमें पहले ही मिल चुका था, एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर लिया, थीटा इज 45 डिग्री। और देखो ये 45 डिग्री पॉइंट, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से पॉइंट से हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में हमें मिलने वाला है। प्लीज नोट डाउन दिस, प्रॉब्लम इज ओवर। तो आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड द प्रोसीजर। अच्छा, और एक चीज आप याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल है, दिस एंगल आइदर यू कैन राइट डाउन इन फॉर्म ऑफ डिग्री और इन फॉर्म ऑफ रेडियन ऑल्सो। तो 45 डिग्री मीन्स इट इज नथिंग बट π/4 रेडियंस। रिकलेक्ट वी हैव डन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो π/4 रेडियन, जनरली रेडियन में लिखो तो बेटर है, बिकॉज ये तो सब रेडियन में ही हम सॉल्व करने वाले। tan ऑफ पाई माइनस थीटा, ये सब रेडियन वाले फॉर्म है। तो बट ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी डिग्री में करो या रेडियन में करो।
इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब फॉर्मेट सभी प्रॉब्लम का सेम रहेगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हिसाब से उसका जो क्वाड्रेंट है और जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। चलो तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये नंबर चेंज कर देता हूँ, 9th एग्जाम्पल है। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग 1 प्लस अयोटा रूट 3 विथ x प्लस अयोटा y। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू रूट 3 है। तो पॉइंट P विच इज 1 कॉमा रूट 3 x कॉमा y। अब दोनों x और y पॉजिटिव है, तो पॉइंट P लाइज इन अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब मॉड्यूलस का फॉर्मूला डालो x और y का वैल्यू एंड सॉल्व इट। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 डालेंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट रूट 4 इज नथिंग बट 2। तो मॉड्यूलस का वैल्यू 2 मिल गया। अभी एम्पलीट्यूड और द आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय tan थीटा इज y बाय x। तो रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 विच इज रूट 3। अब वापस ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। tan फंक्शन रूट 3 कौन से एंगल पे होता है? तो वी नो इट इज नथिंग बट tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। तो हाउ मच इज थीटा? थीटा इज 60 डिग्री, और एल्स वी कैन राइट डाउन दिस एज पाई बाय 3 रेडियंस। हाँ, हमने सीखा है हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, तो आपको आता है। तो 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियंस इज द आंसर। देखो तो ये एंगल 60 डिग्री आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। राइट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर। So let's move on to the fourth example. -3 ब्रैकेट 1 माइनस अयोटा। अच्छा, फर्स्ट थिंग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ये फोर्थ एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो पहले मैं यहीं पे लिख देता हूँ। व्हेन आई ओपन अप द ब्रैकेट आई विल गेट दिस एज -3 प्लस 3 अयोटा, ऐसा लिखो आप। तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। अभी 3 अयोटा लिखो या अयोटा इंटू 3 लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो राइट डाउन, दिस विल बी रिटर्न एज कंपेयरिंग, देखो कंपेयरिंग -3 प्लस अयोटा 3 लिख दो। चलो ये -3 है, कंपेयरिंग -3 प्लस अयोटा 3। 3 अयोटा लिखो या अयोटा 3 लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, विथ x प्लस अयोटा y। तो व्हाट इज x का वैल्यू? x का वैल्यू इज -3 एंड y का वैल्यू इज +3। अब जो पॉइंट P है दैट इज -3, तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो पॉइंट P लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, वैसे तो 2 एन डी लिखने की जरूरत नहीं, सेकंड 2 ही लिखते हैं क्वाड्रेंट। अभी सबसे पहले हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉड z का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, so that will be nothing but under root of -3 का स्क्वायर is 9 plus 3 का स्क्वायर is also 9, so this is nothing but root 18. Now root 18 can be simplified, है ना, 9 2 जा, it is twice, so it is nothing but 3 root 2. तो जो मॉड्यूलस का वैल्यू है that is nothing but 3 root 2. Write down. ठीक है। Now amplitude is given by the formula tan theta is y by x. So y by x, so 3 by -3, so 3 by -3 is -1. अच्छा, अभी समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, अभी चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये -1 3 by -3 है ना, तो ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट -1. नाउ माइनस साइन लेट इट रिमेन सेम। अभी आप देखिए tan 1 कब होता है? एट 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखो tan पाई बाय 4, रेडियंस में लिखो tan
पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, वी नो tan 45 डिग्री 1 होता है। नाउ सिंस द पॉइंट P लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पे अटेंशन, पहले आप समझ लो फिर लिख लेना। अब देखो क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं उल्टा लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या फॉर्मूला है, माइनस tan थीटा इज tan ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ये माइनस tan थीटा है, इसको इसके साथ कंपेयर करो आप, इस वाले को इसके साथ कंपेयर करो। तो माइनस tan थीटा को हम कैसे लिखेंगे, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। According to this formula, how do we write down? This will be written as tan of pi minus, अब थीटा is pi by 4, तो यहाँ पे हम pi by 4 डाल देंगे। राइट डाउन, ये स्टेप हो गया, एंड दिस इज द रीजन। नो डाउट tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा है, तो माइनस tan थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा करके लिखा क्योंकि यहाँ पे वो उस फॉर्म में है। हाँ, तो माइनस tan थीटा इज tan ऑफ पाई माइनस थीटा। देखो वापस एक बार समझाता हूँ मैं, तो कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ। तो थीटा के जगह पे पाई बाय 4, आप ऐसा समझो शॉर्ट में, थीटा के जगह पे पाई बाय 4 डालने का है। तो इधर भी पाई बाय 4 आ गया, इधर भी पाई बाय 4 आ गया, तो ये मिल गया स्टेप हमें। एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। थीटा के जगह पे पाई बाय 4 डाल दिया, वी हैव गॉट दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा को एज इट इज रहने दो। तो tan थीटा is further equal to tan of pi minus pi by 4 is nothing but 3 pi by 4 होता है। एलसीएम लेके सॉल्व किया उसको हमने, तो जब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड से ये tan फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा स्टूडेंट, एंड देयरफॉर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 3 pi by 4 रेडियंस। अभी ट्रिग्नोमेट्री हमने किया हुआ है, इनफैक्ट वी हैव डन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट आल्सो। अब ये 3 pi by 4 रेडियन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, कैसे, तो जरा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो आप। तो हाउ डू वी कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, सी ओवर हियर, 3 pi by 4 multiplied by 180 by pi converted to degrees. Recollect relation, 1 degree is equal to pi by 180 radian and 1 radian is equal to 180 by pi degree. तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल फर्दर बिकम व्हाट, ये पाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, देन दिस विल गो 4, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बिकम 45 इंटू 3 कीजिए आप, तो दैट इज नथिंग बट 135 डिग्री। तो 3 pi by 4 रेडियन is nothing but equal to 135 डिग्री होता है, और हमें पता है कि 135 डिग्री लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम जनरली आंसर जो लिखेंगे, जनरली विल ट्राई टू राइट डाउन इन फॉर्म ऑफ रेडियन ओनली, बट रेडियन में लिखो, डिग्री में लिखो, क्योंकि ये फॉर्मूलेज एक्चुअली हमने रेडियन में याद रखे हैं, तो इट इज बेटर टू राइट डाउन आंसर इन फॉर्म ऑफ रेडियन। ओके, चलो प्लीज नोट डाउन दिस, then we'll move on to the next example. एक दो एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपको ये आइडिया क्लियर होगा ट्रिग्नोमेट्री। इफ यू नो ट्रिग्नोमेट्री वेरी वेल, ये सारी चीजें एकदम सिंपल है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन 11th एज वेल एज इन 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। चलो नोट डाउन। So let's move on to the next example, fifth one. देखो ऑलमोस्ट हर एक में एक एक क्वाड्रेंट वाला प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ। तो -4 आयोटा, राइट ऑन, कंपेयरिंग -4 आयोटा 4 लिख दो आप, 4 आयोटा के जगह पे आयोटा 4 कर दो उसको, विथ x प्लस आयोटा y। तो x का वैल्यू इज -4,
y का वैल्यू इज ऑल्सो -4. तो पॉइंट P इज व्हाट, -4, -4. अब x और y दोनों नेगेटिव है, तो x और y दोनों नेगेटिव है, तो वी नो दैट पॉइंट P लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. अब मॉड्यूलस का तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, mod z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. चलो अप्लाई करो एंड फाइंड आउट द मॉड्यूलस फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो व्हाट इज द मॉड्यूलस का वैल्यू, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, 4 का -4 का स्क्वायर ये भी 16, so that is 2 times of 16, so that is nothing but 4√2. ठीक है ना, 16 2 32 होता है, तो 4√2 हो गया. तो मॉड्यूलस का वैल्यू तो हमें मिल गया 4√2. अभी एम्पलीट्यूड मतलब थीटा जो फाइंड करना है, tan थीटा का फॉर्मूला y/x, तो y डिवाइडेड बाय x, तो -4 डिवाइडेड बाय -4, तो थीटा इज 1. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. अभी जरा थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना आप. अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया. अब tan फंक्शन 1 कब होता है, तो वी नो दैट tan π/4, tan 45 डिग्रीज का वैल्यू 1 होता है. अभी सपोज अगर आपने थीटा π/4 लिख दिया, तो आपका थीटा गलत हो जाएगा. You cannot write down theta is equal to π/4, it will become wrong. अब बोलोगे क्यों नहीं सर, दोनों को कंपेयर करके थीटा π/4 तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, आपने तो बोला अभी कि कंपेयरिंग करना है हमें, तो फिर थीटा इज इक्वल टू π/4 क्यों नहीं. P कौन से क्वाड्रेंट में है, P लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. अगर थीटा π/4 लिख दिया, तो π/4 दैट इज 45 डिग्री एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में रहेगा एंगल उसी क्वाड्रेंट में आएगा. वी हैव डन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में क्या किया, द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, so the angle also lies in the third quadrant, and π/4 does not lie in third quadrant. ठीक है, तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला है, tan of π plus theta is equal to tan theta. अब मैं फॉर्मूला उधर उल्टा करके लिखूंगा, हाँ, आपके रेफरेंस के लिए. तो देखो क्या फॉर्मूला है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan of π plus theta. एक ही चीज है, tan of π plus theta इज इक्वल टू tan थीटा बोलो, या tan थीटा इज इक्वल टू tan of π plus theta बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मूला को मैंने उल्टा करके लिख दिया है वहां पे. तो अब देखो थीटा की जगह पे π/4 डालने का है, कुछ नहीं करने का, एकदम सिंपल है. जैसे मैं बताता हूँ ना, इट इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन. थीटा की जगह पे π/4 इधर डालो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम tan ऑफ π plus π/4. इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो थीटा का वैल्यू π/4 इधर डाला मैंने और वो लिखा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया. नाउ लेट अस टेक एलसीएम. तो π plus π/4 इज नथिंग बट 5 π/4 हो जाएगा. तो अभी हम कंपेयर करेंगे, तो थीटा का वैल्यू इज नथिंग बट 5 π/4 रेडियन. चलो आप इसको डिग्रीज में चाहिए, तो आपके रेफरेंस के लिए इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो. डू इट. हाउ मच विल दैट बी. अभी देखो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं हम. π/4 मीन्स इट इज 45 डिग्रीज. π/4 मतलब 45 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हाउ मच विल दैट बी, इट विल बी 225 डिग्री. तो देखो 225 डिग्री ये जो एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो राइट डाउन क्वाड्रेंट सिस्टम, आई होप एवरीवन नोज दैट, है ना. चलो आपके लिए वो भी बता देता हूँ मैं, वैसे तो आपको पता होना ही चाहिए, वी हैव डन इट ऑलरेडी एंगल मेजरमेंट में भी, कि ये 0 to 90 डिग्री, और 10 स्टैंडर्ड में भी आपने ये किया हुआ है. 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 डिग्रीज टू 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है. 180 टू 270 डिग्रीज ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड 270 टू 360 डिग्रीज ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. तो 225 डिग्रीज यहाँ पे लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में.
तो ये पॉइंट पे बहुत ध्यान रखना है, अगर गलती से हमने थीटा इज इक्वल टू π/4 लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। थीटा व्हेन द पॉइंट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट द एंगल विल बी आल्सो इन दैट सेम क्वाड्रेंट। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एंड दैट एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी इसमें सिक्स्थ वाला करना है अपने को इसके बाद। तो चलो लेट अस स्टार्ट डूइंग, आप भी खुद कर सकते हो साथ साथ। √3 माइनस अयोटा, तो कंपेयरिंग √3 माइनस अयोटा with x plus iota y, तो x का वैल्यू इज √3 एंड y का वैल्यू इज -1। ठीक है ना, हम a प्लस अयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, इंस्टेड ऑफ a प्लस अयोटा b नाउ वी आर राइटिंग डाउन x प्लस अयोटा y, सेम चीज है। तो x इज √3 एंड y इज -1। अभी देखो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो पॉइंट P है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हाँ, मतलब एंगल 270 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा एंगल है। तो मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला √x², इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, √4 2 आ गया। एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय tan थीटा इज y अपॉन x, तो -1 अपॉन √3, -1 by √3 है tan थीटा। नाउ लेट माइनस साइन रिमेन सेम, माइनस साइन को आप एज इट इज रखो, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, राइट डाउन, माइनस साइन को एज इट इज रखो। अब tan 1 by √3 कब होता है? तो रिकरेक्ट स्टूडेंट, वी नो दैट tan 30 डिग्री का वैल्यू tan 30 1 by √3 होता है, ठीक है ना। तो 1 by √3 के जगह पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, but 30 degree means it is nothing but π/6 radians. We have done it in angle and its measurement. लिख लो आपके रेफरेंस के लिए, रीजन सब लिख लो। माइनस साइन सेम रहेगा, tan 30 1 by √3, तो 1 by √3 के जगह पे हमने tan 30 लिखा, 30 न लिखते हुए π/6 लिख दिया हमने, ठीक है, राइट डाउन। अभी हमें पता है कि वो जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला है? tan ऑफ 2π माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अब जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया, उल्टा करके लिखूंगा मैं फॉर्मूला को आपके रेफरेंस के लिए। तो क्या फॉर्मूला है? माइनस tan थीटा इज नथिंग बट tan 2π माइनस थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा लिखेंगे हम इसको। तो भी आप कंपेयर करो इसको इसके साथ, तो थीटा के जगह पे π/6 डालना है हमें, तो डालो थीटा के जगह पे π/6, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी रिटर्न एज tan ऑफ 2π माइनस π/6। अभी 2π माइनस π/6 का एलसीएम ले लो आप, तो दिस विल बी tan ऑफ, तो 12π, तो ये हो जाएगा 11π/6, 12π माइनस π इज 11π, तो tan थीटा इज tan 11π/6 एंड तो कंपेयर करेंगे तो थीटा इज नथिंग बट 11π/6 चाहिए, तो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो आप। तो π/6 मतलब कितना होता है? 30 डिग्री, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये हो गया 330 डिग्रीज। ये देखो 330 डिग्रीज फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 से बड़ा है और 360 से एंगल छोटा है, तो 330 डिग्री लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रॉब्लम इज ओवर। तो हर एक क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एवरी प्रॉब्लम वी हैव टेकन, so please note down. तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए आप, ये रब कर देता हूं मैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व इट इज 7 माइनस 5 अयोटा, और ये फर्स्ट एग्जांपल है उसी एक्सरसाइज में। नाउ राइट डाउन, कंपेयरिंग, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। राइट डाउन, कंपेयरिंग 7 माइनस 5 अयोटा
with x plus iota y. तो x का वैल्यू इज 7 एंड y का वैल्यू इज -5. पॉइंट P इज 7, -5. x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है. So that is the reason why point P lies in the fourth quadrant. मॉडुलस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस y का स्क्वायर इज 25, so that will be अंडर रूट ऑफ 74. रूट 74 आ जाएगा ये. ठीक है, अभी लेट इट बी रूट 74 को एज इट इज रहने दो. नाउ अभी जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है उसमें थोड़ा चेंज है. तो राइट डाउन, अब लिखो मॉड z का तो वैल्यू आपको मिल गया. सेम वे amplitude is given by tan theta is y by x. So tan theta is y divided by x. So -5 divided by 7. अब देखो क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये जितने भी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स किए ना सब स्टैंडर्ड वैल्यूज थे. वी कुड हैव रिटन इट एज tan pi by 4, tan pi by 3, tan pi by 6, यू नो, उसमें कन्वर्ट कर सकते थे हम क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यूज थे एंड एट दैट एंगल those values were known. But -5 by 7 आप इसको tan, you can write down this as tan 30 degrees or tan 60 degrees, ऐसा नहीं लिख सकते हम क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो प्रेजेंट होता है. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ टू बी राइट डाउन थीटा. तो tan थीटा इज -5 by 7. So थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ -5 by 7. ये देखो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z. थीटा कैसे डिफाइंड है, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y by x. अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया था. अब जब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगा तो हम इसको यूज करेंगे. तो अब ये प्रोसीजर से चलो. tan थीटा इज -5 by 7. -5 by 7 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो थीटा विल बी रिटर्न एज tan इनवर्स ऑफ -5 by 7. अच्छा, लेट मी टेल यू, थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा विल बी फर्दर रिटर्न एज -tan इनवर्स ऑफ 5 by 7. हो सकता है उसने टेक्स्ट बुक में ऐसा आंसर दिया होगा. नाउ 12th स्टैंडर्ड में जाके एक प्रॉपर्टी है, अब वो 12th स्टैंडर्ड में है पर मेरे को अभी आपको बताना जरूरी है. तो क्या प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स ऑफ -x होता है -tan इनवर्स ऑफ x. See, these are all inverse trigonometric functions और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम सीखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में जाके, बट अभी मेरे को आपको बताना जरूरी है. तो हो सकता है उसने आंसर टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट सीन. आप देख लेना, ऐसा भी रख सकते हो आप. इसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसा हो जाएगा. ये ऐसा क्यों हो गया, तो उसका रीजन है tan इनवर्स ऑफ -x इज -tan इनवर्स ऑफ x. नो डाउट दिस प्रॉब्लम इज आल्सो डन. अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं था तो इसलिए मैंने ये भी प्रॉब्लम ले लिया. तो व्हेन इट इज नॉट स्टैंडर्ड आपको थीटा इस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, नेगेटिव आ गया तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. राइट डाउन, दिस इज ओवर. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम थोड़े जरा स्पेशल केस ले लेते हैं इन विच वी वांट टू फाइंड आउट मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड. अब एग्जैक्टली स्पेशल केस क्या है, तो अभी हमने जितने भी प्रॉब्लम्स पहले प्रीवियसली लिए है दे वर ऑल लाइंग इन द क्वाड्रेंट्स. अब अगर क्वाड्रेंट में नहीं है, अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है तो उसमें एंगल कैसे फाइंड करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आई शो यू द रिप्रेजेंटेशन, जस्ट पे अटेंशन, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देखो मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, स्टार मार्क किया है. दीज आर 2 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर. दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस. आपको पता है एक्स एक्सिस is real axis and y axis is imaginary axis. ठीक है, अभी अगर पॉइंट क्वाड्रेंट पे नहीं है और एक्सिस पे लाई कर रहा है, say if the point P is on the positive x axis, तो जो एंगल फॉर्म होगा at this point it will measure, इस पॉइंट P के लिए जो एंगल मेजर होगा that will be 0 डिग्री. क्योंकि जो एंगल होता है थीटा शुड लाई बिटवीन 0 एंड 360. 360 से एंगल कम होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए एंगल. ओके,
तो अगर पॉइंट, चलो P1 ले लेते हैं, अगर पॉइंट P1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो एंगल जो एम्पलीट्यूड है वो 0 डिग्री होगा। अभी कोई दूसरा पॉइंट है, पॉइंट तो एक प्रॉब्लम के लिए तो सिंगल पॉइंट ही होगा ना, नाउ बट आई एम नेमिंग दिस एज पॉइंट P2। अगर पॉइंट P2 पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है तो इन दिस केस एंगल विल बी 90 डिग्रीज और यू कैन से π/2 रेडियंस। अगर पॉइंट P यहाँ पे है, मतलब P3 मान लो आप इसको, if the point P3 is on the negative x-axis, so in this case the angle will be 180 degrees or you can say pi radians। और अगर पॉइंट नेगेटिव y एक्सिस पर है तो इसको पॉइंट P4 नाम दे देंगे। तो इन दिस केस एंगल विल बी 270 डिग्रीज और यू कैन से 3 π/2 रेडियंस। तो अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो एंगल हमें डायरेक्टली मिलते हैं, देन वी डोंट यूज tan थीटा का फॉर्मूला, हम डायरेक्टली वहां से थीटा निकाल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्लीज नोट डाउन टिल हियर। फिर हम ये दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू ऑब्जर्व दीज टू एग्जांपल्स आर नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो प्रॉब्लम नहीं पूछ सकते। तो विल डू दीज टू एग्जांपल, बट पहले आप नोट कर लो इसको। एक्स्ट्रा है, इसको स्टार मार्क कर लो। इसको भी स्टार मार्क ही किया है मैंने। तो पहले ये वाला करते हैं -2। तो व्हाट वी डू, सॉल्यूशन फॉर द स्टार प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है, इससे स्टार मार्क किया है। तो कंपेयरिंग -2 प्लस अयोटा 0 विथ x प्लस अयोटा y। तो x का वैल्यू -2 है, ठीक है, एंड y का वैल्यू इज 0। तो द पॉइंट P इज -2, 0। तो -2, 0 कहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट्स? इट विल बी ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पॉइंट P लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला मॉड इज इक्वल टू √(x² + y²। तो √(-2) का स्क्वायर तो 4, 0 का तो स्क्वायर 0 रहेगा, एंड √4, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2। तो मॉड्यूलस का वैल्यू 2 है। अभी देखो पॉइंट P लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो सिंस इट इज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, हाउ मच इज द एंगल? 180 डिग्री। -2, 0 पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, आपको पता है। तो एम्पलीट्यूड इज दैट इज इट इज 180 डिग्रीज और यू कैन राइट डाउन पाई रेडियन। मतलब जो थीटा है, थीटा इज 180 डिग्री और यू कैन राइट डाउन इट इज नथिंग बट पाई रेडियन। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। तो देखो ये अगर हम डायग्राम माइंड में फिक्स कर लेते हैं तो इट इज वेरी सिंपल, हमें एंगल्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। बट इफ इट इज ऑन द एक्सिस, अगर एंगल क्वाड्रेंट में है तो यही हमारा क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला चलेगा। अगर एंगल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो ये वाला सिस्टम चलेगा। प्लीज नोट डाउन। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, 3 अयोटा वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपेयर तो करेंगे हम इससे। तो आई जस्ट रब दिस ऑफ, ये वैल्यूज में रब कर देता हूँ। तो 3 अयोटा, तो इट इज नथिंग बट 0 प्लस, अब 3 अयोटा लिखो या अयोटा इंटू 3 लिखो, तो x का वैल्यू इज 0 एंड y का वैल्यू इज 3, तो इट इज 0,3। अब आपको पता है 0,3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे P2। तो द पॉइंट P लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर इज 9 एंड √9 इज 3। मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपको याद रखना है। एंड एम्पलीट्यूड इज हाउ मच? 90 डिग्रीज और π/2 रेडियंस। मतलब जो थीटा है
वो आप 90 डिग्री लिखो या π/2 रेडियन लिखो, प्रॉब्लम इज ओवर। राइट डाउन। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो ये दो ही प्रॉब्लम्स पूछेंगे। इस नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करने वाला भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको वो दे सकता है और उसके ऊपर प्रॉब्लम बना सकता है। बट दीज टू आर नॉन टेक्सचुअल एग्जाम्पल, बट ये आ सकते हैं, नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी डू फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है ना वो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को टाइप वाइज कर रहा हूँ। तो टाइप वाइज तो मैं क्वेश्चंस को रीअरेंज करके ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट वाला है। फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, दिस विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। नोट डाउन, वेटेज लिख लो आप इसका। अच्छा, सबसे पहले दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कन्वर्ट करने का है x प्लस आयोटा y में। तो यू नो वी दिस इज डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसको हमें x प्लस आयोटा y में कन्वर्ट करना है। तो राइट डाउन सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा दिया है। Now we have to multiply and divide by complex conjugate of 1 minus 3 iota. तो 1 minus 3 iota का complex conjugate क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 plus 3 iota से multiply किया, 1 plus 3 iota से divide किया। Now चलो let us carry out the multiplication of these two complex numbers. Multiply कीजिए आप इसको। तो I'll just continue here itself. तो इसको जब हम multiply करेंगे तो what will this become? This is going to become, ये हो जाएगा 1 plus 3 iota plus 2 iota plus 6 into iota का square upon denominator, it is of the form a minus b into a plus b, तो 1 का square is 1 minus 3 iota का whole square, तो 3 का square होता है 9, 9 into iota square हो जाएगा। हाँ, we cut short the number of steps है, ये इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अभी हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 डाल देंगे। तो चलो लेट अस राइट डाउन व्हाट विल z बिकम। एक्चुअली सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा था और इसको थोड़ा वो स्पेस की वजह से मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। सॉल्यूशन फॉर द 6th वन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर z इज फर्दर इक्वल टू व्हाट, 1 रिमेनिंग सेम, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 5 आयोटा, ये हो जाएगा -6 अपॉन 1 प्लस 9, ये हो जाएगा 10। ठीक है, रीजन वी नो, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 डाला है हमने यहाँ पे। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम -5 प्लस 5 आयोटा बाय 10। तो 5 टाइम्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज -1 प्लस आयोटा बाय 2। न्यूमरेटर में 5 कॉमन आएगा एंड 5 2 10, तो वो कैंसिल हो जाएगा। So therefore z is further equal to what? So -1 by 2 plus 1 by 2 into iota, ये हमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अभी हम कंपेयरिंग करेंगे, सेम प्रोसीजर। तो लिखो कंपेयरिंग -1 by 2 plus 1 by 2 iota with x plus y iota और iota y जैसे भी है। चलो नाउ स्टार्ट सॉल्विंग, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये तो आप कर ही सकते हो। हाँ, कितने एग्जांपल्स किए हमने, सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव डन। So here value of x is -half and value of y is half. Therefore, px comma y, which is equivalent to -half comma half, lies in
द पॉइंट पी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। पॉइंट पी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम मॉडुलस फाइंड करेंगे, मॉड जेड। तो लिखो मॉडुलस, मॉड जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर तो 1/4, इसका स्क्वायर वो भी 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 इज नथिंग बट 2/4, तो 2/4 मीन्स इट इज नथिंग बट 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√2, रूट ऑफ 1/2, उसको हम 1/√2 लिख सकते हैं। तो ये मॉडुलस का वैल्यू है। स्ट्रेट डाउन हो गया मॉडुलस वाला पार्ट। अभी हमें फाइंड करना है थीटा, बट आपको पता है ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे tan इनवर्स वाला। तो नाउ मॉडुलस, उसने क्या पूछा आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट लिख लो। नाउ आर्ग्यूमेंट tan थीटा is given by y upon x, so y divided by x, so that is 1/2 divided by -1/2, so therefore students tan theta is -1, 2 कैंसिल हो जाएगा, so therefore स्टेप्स तो आपको पता है, tan theta is equal to माइनस साइन रिमेनिंग सेम, ये हम लिखेंगे tan π/4। बट अभी देखो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पॉइंट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का ये फॉर्मूला है tan ऑफ पाई माइनस थीटा। तो लिख लो, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है, तो देयरफॉर tan थीटा विल बी रिटर्न एज tan ऑफ, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस एक बार बता देता हूँ, इसको आप इससे कंपेयर करो तो थीटा का वैल्यू π/4 वहां पे डालना है, तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ पाई माइनस π/4, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, ये हो जाएगा 3π/4, एलसीएम लेके सॉल्व किया पाई माइनस π/4 का, तो देयरफॉर हाउ मच इज थीटा, थीटा इज नथिंग बट 3π/4 रेडियंस, और यू कैन से 135 डिग्री, 45 हो जाएगा, 45 इंटू 3, तो 135 डिग्री एंगल है। हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर। सिट डाउन। ठीक है, तो देखो जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको वो हमेशा x प्लस अयोटा y के फॉर्म में ही देगा, ही मे गिव अस समथिंग लाइक दिस। तो जो हमने किया ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसको आपको x प्लस अयोटा y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, फिर वो कंपेयरिंग से फिर मॉडुलस वाला पार्ट और फिर आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट आता है। ओके, so please make a note of this. ठीक है स्टूडेंट्स, so with this we have finished off today with modulus and argument of a complex number. अभी यही चीज आगे जाके, ये जो मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है ना, यही चीज आगे जाके कंटिन्यू होके अपने को आगे के पार्ट में काम आने वाला है। हाँ, so this is very important, please revise this once again and keep studying and keep watching my YouTube channel. Thank you very much. We stop for today.